Hmm. Collisions in one dimension. We will discuss about collisions in one dimension. We will discuss about the collisions in one dimension. हम वन डायमेंशन में जो कोलिजन्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। और अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि दिस इज आर्टिकल नंबर 6.12.2 ऑफ एनसीईआरटी एंड सो नाउ बट वी हैव स्टडीड सो फार। उसके बाद हम वहीं से चर्चा अपनी शुरू करते हैं। इस डायग्राम के बारे में हमने बात किया था अभी तक, तो इस डायग्राम में कितना चेंज आ जाएगा यदि हम पढ़ते हैं कोलिजन्स इन वन डायमेंशन। ओके, so see here, this is the collision in two dimensions. So if we have to discuss the collision in one dimension, then theta 1 must be equal to 0 and theta 2 must be equal to 0, right? So as we are discussing about the collisions in one dimension. So collisions are of three kinds, as we have discussed earlier. This is elastic collision, inelastic collision, and completely inelastic collision. So we will start with now completely inelastic collision. So we will start with completely inelastic collision. Completely inelastic collision. So now I would like to discuss a little bit about completely inelastic collision. It is a collision when the two objects will collide with one another. I have discussed it earlier also with you, but I will take on it once again. This is the mass 1, and this is the second mass which is in a state of rest. This is the second mass which is in a state of rest, and this is the time of collision of these two masses. This is mass 1 and this is mass 2, but this is the time now after collision. So after collision, both of these masses will combine together and they will move as a one body. So both of these masses will now move together as a one body. So I would like to mark this as this is mass m1 and its initial velocity is vn initial, and this is the second mass, its velocity is v2 initial, and this is the time of collision. This is the time of collision. Here these two masses will collide for some time delta t, and finally these two masses will stick together and they will behave as a single mass m1 and m2, and let b final be the final velocity of this combined mass. B final is the final velocity of this combined mass. So what will happen in case of inelastic collision? In inelastic collision, momentum will remain conserved. So the linear momentum which is conserved, which will remain conserved in all kind of collisions, it is conserved, but kinetic energy, this is not conserved. So you must be very much clear about this inelastic collision, completely inelastic collision, right? So now we will start with, so here but we have done from the earlier discussion, here theta 1 and theta 2 both are equal to 0 for collision in one dimension. So initially we will start with the conservation of the linear momentum. So the linear momentum is part ka, this is the initial momentum, right? And this is the final momentum. So write down here the initial momentum is, this is m1 b1 initial, and as this mass is in state of rest, so this the velocity is 0, so I can write the initial momentum is 0 for the second particle, and this is equal to this part. Combined mass of these two is m1 plus m2 because they stick together and move as a one body. So this is the final velocity. From here on you can calculate the final velocity. Final velocity of this combined mass is equal to
m1 over, this is m1 plus m2 and b1 initial velocity, right? So this is the information about the final velocity of the combined mass in case of completely inelastic collision. So what we have seen over here is the linear momentum of the system will remain conserved, but the kinetic energy is not conserved. So what will happen to the kinetic energy? Kinetic energy is not conserved means the initial kinetic energy is not equal to the final kinetic energy. And if it is not equal to the final kinetic energy, as we discussed earlier, the energy loss in form of heat and sound, so there is some loss in kinetic energy. So we will concentrate over here to find the loss of kinetic energy, क्योंकि यदि वो कंजर्व नहीं है और वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं है, तो एनर्जी कहीं लूज हुई है. वो कितनी एनर्जी इसमें लूज हुई है उसको हम ढूंढने की कोशिश करेंगे. द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑन कोलिजन इज द लॉस in kinetic energy, the loss in kinetic energy during collision is, the loss in kinetic energy during collision is, so this is a loss in kinetic energy, means initial kinetic energy is equal to this is minus final kinetic energy. This is 1 by 2 m1 b1 I square, because the second mass is in state of rest, minus 1 by 2 the combined mass is, this is m1 plus m2, and the final velocity is b final square. Okay, so we can substitute the value of the final velocity from the above equation number 1. Now from equation number 1 and 2, from equation 1 and equation 2, so you can write down over here, this is the loss in kinetic energy is equal to 1 by 2, this is the mass, and v1 I square, minus 1 by 2, this is m1 plus m2, दिस इज बी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर यदि आप करेंगे, सो यहाँ स्क्वायर करके भर देंगे सीधा ही, तो ये हो जाएगा m1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 स्क्वायर, एंड देन दिस इज b1 I स्क्वायर. ओके, so so this is a change in kinetic energy is, 1 by 2, this is m1 b1 I square, minus you can cancel out this part with this, and you are left with the minus 1 by 2, this is m1 square b1 I square upon m1 plus m2, so you can take out this, the loss in kinetic energy. ये kinetic energy वही है जो heat और sound की form में loss होती है. अब आप ये kinetic energy बाहर निकाल लीजिए, 1 by 2 m1 b1 I square could be taken outside. ध्यान रखिए जिस चीज़ को हम कॉमन निकालते हैं उसके अंदर वाली चीज़ों को उसे डिवाइड करते हैं. अब आप यहाँ से निकाल रहे हो तो आप 1 by 2 m1 b1 I से आप डिवाइड करिए, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्वांटिटी सेम हो जाएगी, तो यहाँ आएगा 1, राइट. यहाँ से आप डिवाइड करेंगे 1 by 2 से 1 by 2 1 आएगा, यहाँ m1 से यहाँ एक m1 रह जाएगा, एक कट जाएगा, b1 I स्क्वायर से b1 I स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो आप यहाँ लिख देंगे, नीचे बचा आपके पास m1 plus m2. ओके, so we have here delta k is equal to 1 by 2, this is m1 b1 I square, or here you have to take the LCM of this, this is m1 plus m2. अब आप क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, 1 से आप LCM को डिवाइड करेंगे, आंसर सेम रह जाएगा m1 plus m2, इसको आप यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे,
सो ये आपके पास आ जाएगा m1 प्लस m2, और इस केस में क्या करेंगे, यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम के बिल्कुल बराबर है, तो काटने का बाद 1 आएगा, 1 से आप m1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास m1 ही आएगा। यदि आप ब्रैकेट खोलें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, m1 के साथ यहाँ m1 कैंसिल हो जाएगा, you are left with this change in or loss of kinetic energy during collision is this is 1 by 2, you can write it down like this, 1 by 2 m1 m2, this is 1 by 2 m1 m2 upon m1 plus m2 into v1I square. So this is what we have to study about the loss of kinetic energy. जब हमने perfectly inelastic collision को पढ़ा था तो हमने ये बात की थी कि जब दो masses एक दूसरे के साथ टकराते हैं, when they collide with one another, when two masses collide with one another physically, then they produce heat and sound. So they lose the energy in the form of heat and sound. This is that loss of kinetic energy which we have calculated from equation number 3. So this is very interesting result for you. आपको अब पता चल जाएगा कि जब यदि जो दो पार्टी का टकराएंगे और टकराने के बाद जो एनर्जी लूज करेंगे, यदि उसको आपने कैलकुलेट करना है, you can use this equation. Alright, so we will now carry on our discussion for the elastic collision in one dimension. About the another part of the collision, that is elastic collision in one dimension. So for that sake you have to go to the another page. So this page is this. Okay, so we'll now go for the now elastic collision in one dimension. This is very interesting and informative article, elastic collision in one dimension. So this is elastic collision, this is elastic collision, okay, in one dimension. So as the questions to one dimension is concerned, so हमारा जो existing diagram था उसका केस हमेशा भी ऐसा ही, यहाँ भी ऐसा ही रहेगा, θ1 is equal to θ2, both are equal to 0 from the same diagram. So but we discussed earlier. So जब वन डायमेंशन का केस होगा तो हमारे पास कुछ हम डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके का होगा कि we will have a one mass like this is one mass m1, and this is the second mass, this is m2, which is initially in the state of rest. So this mass is m2 and its initial velocity is b2I, which is equal to 0, and this mass is m1 and its initial velocity is v1I, as we have done it again and again. So this mass is moving toward this mass m2, right? So after some time these masses will collide with one another, and this is the time of collision. This is the time of collision. Then two masses will collide with one another, and after collision in one dimension, after collision this is the position of one mass, and this is the position of second mass. This is mass m1, and this is the final velocity of mass 1, and this is the final velocity of the second mass. This is mass m2. So as this collision is elastic collision, so this elastic collision is based upon two facts. That linear momentum is conserved in this case. Linear momentum
linear momentum is conserved, where linear momentum is conserved and kinetic energy is also conserved. So we will make use of these two. Kinetic energy is also conserved. So both linear momentum and kinetic energy are conserved. So we will make use of these two concepts over here. So we'll start with the law of conservation of linear momentum. So as this mass is in a state of rest, so the initial momentum is, इस part का जो initial momentum क्या हो जाएगा? This is m1, okay. This is initial momentum हो जाएगा, initial momentum, and from there we have the final momentum. So the initial momentum is m1 b1I plus this the second mass has the initial momentum 0 because of this velocity, and the final momentum is m1 b1 final plus m2 b2 final, right? So this is equation number 1. This is I will not mark this as equation number 1. This is m1 b1 initial is equal to now m1 b1 final plus this is m2 b2 final. So this is equation number 1. This is equation number 1. Okay. So this is also based upon, this is all because of law of conservation of linear momentum. Now we'll think about the law of conservation of kinetic energy. So the kinetic energy of this mass 1 is 1 by 2 m1 b1I square, but kinetic energy of the second mass is 0 because of the rest position of the second mass, and this is the final kinetic energy is 1 by 2 m1 b1 final square plus 1 by 2 m2 b2 final square. So 1 by 2 is common. You are left with the m1 b1 initial square is equal to m1 b1 final square plus m2 b2 final square. So this is the second equation, second important equation. So now we will operate on these two equations because these are because of the consequences of law of conservation of energy and momentum. So now here on we will multiply the equation number 1. अब हम इससे सिर्फ मैथमेटिक्स करेंगे, और इस मैथमेटिक्स का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, हमने करना क्या है कि हम इन दोनों का यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करने के बाद हमें देखेंगे कि जो टकराने के बाद ये जो फर्स्ट पार्टिकल है जिसका मास m1 है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और जो सेकेंड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी. अब हमारा जो मैथमेटिक्स है वो इस स्टेप में आगे मूव करेगा. सो दिस इज जस्ट द ओनली द मैथमेटिकल ऑपरेशन. ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल से. अब यहाँ आपने ये देखना है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका प्रिंसिपल ये होता है कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है ऐड करना. तो आप यहाँ जो चीज़ ऐड करेंगे और इधर नहीं ऐड करेंगे तो ये पलड़ा भारी हो जाएगा, ये हल्का रह जाएगा. तो यदि इक्वेशन में बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में बराबर है, तो दोनों साइड आपको बराबर चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, मतलब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. सो हमेशा जब हम ऑपरेशन करते हैं, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीज़न हो, तो बराबर ही करना पड़ता है. सो यदि मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 1 क्रॉस V2F मीन्स we will multiply both left hand side and right hand side. So see here now आपके पास बचेगा m1 b1 initial into b2 final. इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ कर दीजिए. आपके पास आएगा m1 b1 final के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं b2 final और प्लस m2 b2 final है, m2 b2 फाइनल, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं b2 फाइनल.
तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। ओके, अगले स्टेप में आप क्या करें कि आपके पास होगी अब इक्वेशन नंबर 3। अब आप ऐसा करें, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें। ओके, सो वी विल हैव नाउ m1 b1i एंड b2 फाइनल में से आपने घटा दिया m1 b1i स्क्वायर को, और यहाँ आपने लिखा m1 b1 फाइनल एंड b2 फाइनल प्लस m2 b2 फाइनल स्क्वायर में से आपने घटा दिया इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड m1 b1 फाइनल स्क्वायर माइनस m2 b2 फाइनल स्क्वायर, इसमें से घटा दिया। अब m2 b2 फाइनल स्क्वायर और m2 b2 फाइनल स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब आप स्क्वायर्ड वाले पार्ट को एक साइड ले जाइए और आप जिसकी डिग्री 1 है उसको आप एक साइड ले आइए। ओके, सो now we'll go for this. We will have now m1 b1 initial and b2 final. आप इस पार्ट को इधर ले आइए, माइनस ऑफ m1 b1 फाइनल एंड b2 फाइनल, और आप यहाँ से इस पार्ट को इधर ले जाइए। आपके पास बचेगा m1 b1 इनिशियल स्क्वायर माइनस m1 b1 फाइनल स्क्वायर। ओके, इसमें आप देखेंगे कि m1 इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। सो यू आर लेफ्ट विद, यहाँ आप b2 फाइनल को आप कॉमन निकाल लीजिए। आपके पास अंदर बचेगा b1 इनिशियल माइनस b1 फाइनल इज इक्वल टू, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, so this is b1 इनिशियल माइनस b1 फाइनल, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड b1 इनिशियल प्लस b1 फाइनल। ओके, सो b1 इनिशियल ये वाला पार्ट जो है ये कैंसिल हो जाएगा। You are left with b2 final is equal to b1 initial plus b1 final। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकेंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी इलास्टिक कोलिजन में वो होगी फर्स्ट पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी और फर्स्ट पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी के बराबर। सो आप इसको इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर सकते हैं। ओके, हमने आपके साथ पहले ही बात किया था कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव भी है कि b1 फाइनल को और b2 फाइनल को निकालना। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलें तो वो बहुत अच्छा होगा। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 का इस्तेमाल करेंगे। सो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट पेज। आपको इंजॉय करना है इसको। सो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है m1 b1 इनिशियल, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इट इज इक्वल टू m1 b1 फाइनल प्लस m2 b2 फाइनल, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन नंबर 4 इज v2 फाइनल इज इक्वल टू b1 इनिशियल प्लस b1 फाइनल, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। From equation 1 and equation 4, from equation 1 and equation 4 आप b2 फाइनल की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए b2 फाइनल का वैल्यू। ओके, सो यू आर लेफ्ट विद m1 b1 इनिशियल इज इक्वल टू m1 b1 फाइनल प्लस m2। अब आप इसकी जगह ये वाला पार्ट रख सकते हैं, b1 इनिशियल प्लस b1 फाइनल। ओके, सो इट कुड बी रिटन एज
m1 b1 initial is equal to m1 b1 final plus m2 b1 initial प्लस m2 b1 फाइनल। सो हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी, तो इसको आप एक साइड रखिए और इनिशियल वेलोसिटी वाला पार्ट को दूसरी साइड ले जाइए। सो आपके पास रह जाएगा m1 माइनस m2 इंटू b1 इनिशियल, और यहाँ आपके पास रह जाएगा m1 प्लस m2 इंटू b1 फाइनल। सो फ्रॉम हेयर ऑन यू कैन कैलकुलेट दिस पार्ट। अब इसके और इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। यू कैन राइट b1 फाइनल इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड ये रह जाएगा b1 इनिशियल। So this is the relation between the initial velocity and the final velocity of the first particle, right? In terms of their masses m1 and m2. अब हमारा सेकेंड स्टेप है। अब हमें यहाँ से डायग्राम्स में हम जाएं और वहाँ देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप यहाँ देखें, यहाँ आप देखें तो ये जो ये b1 फाइनल वेलोसिटी को हमने अब निकाल लिया है। अब हम चलते हैं आगे। We'll proceed ahead now to find the our next step is to find the b2 final. So b2 final निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब b1 को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम इसी तरीके से इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से हम b1 फाइनल को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये 10th की प्रॉब्लम है जो आपने 10th में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है। फ्रॉम इक्वेशन 4 अब नए आउटकम के लिए हम नया कलर चूज कर लेते हैं। शायद आपको ये कलर भी अच्छा लगेगा। यहाँ से हम b1 फाइनल को एलिमिनेट करते हैं। b1 फाइनल जो है b1 फाइनल इज इक्वल टू b2 फाइनल minus b1 initial. We'll write that as b2 final is we'll substitute now b1 final is equal to b2 final minus b1 initial. So इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में रख लीजिए। using in equation number 1 we have, अब आपके पास आ जाएगा b1 फाइनल को आपने एलिमिनेट करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा m1 b1 इनिशियल इज इक्वल टू m1। अब b1 फाइनल की जगह आप लिख दीजिए b2 फाइनल माइनस b1 इनिशियल प्लस m2 b2 फाइनल, राइट। सो यहाँ खुल जाएगी ब्रैकेट m1 b1 initial is equal to m1 b2 final minus m1 b1 initial plus m2 b2 final. So b2 final आपको निकालना है। इस वाले पार्ट को आप इधर ले आइए। ये आपके पास आ जाएगा m1 b1 initial plus m1 b1 initial is equal to, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपके पास m1 plus m2 and b2 final. So this part will become now, आप आगे पीछे करके लिख दीजिए m1 plus m2 b2 final is equal to 2m1 b1 initial. So b2 final is equal to 2m1 upon 2m1 upon m1 plus
m2 and b1 initial velocity. So this is what our second requirement is. ये हमारी second requirement है. This equation was our first requirement and this equation was our second requirement. So now we'll go for some special cases. ये अननोन थे हमारे पास कि यदि कोलिजन होता है तो टकराने के बाद ये जो दोनों मासेस हैं वो किस वेलोसिटी के साथ आगे जाएंगे. सो हम अब इसमें से कुछ स्पेशल केसेस करते हैं जो आप नॉर्मल सिचुएशंस में अपने राउंड अबाउट चीज़ों को देखते हैं. हम उसके बारे में अब थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे. हमारे पास है केस नंबर 1, पहला केस जो आपने देखा होगा अपने आजू बाजू में. सो देखिए केस नंबर 1 ऐसा हो सकता है. अब आप इन दोनों फार्मूलों के ऊपर ध्यान दें और फिर आप देखेंगे कि कितनी मज़ेदार चीज़ें बाहर आ जाएंगी. इफ़ टू मासेस आर इक्वल, आप बच्चे लोग कंचे खेल रहे हैं और ये दोनों कंचे एक जैसे हों. इफ़ टू मासेस आर इक्वल, यदि आप दोनों बच्चों के कंचे सेम हैं तो हमें उसका मैथमेटिक्स कैसे लिखना पड़ेगा. कंचा नंबर 1 का मास m1, कंचा नंबर 2 का मास m2 और दोनों कंचों का मास जो है वो एक दूसरे के बराबर है. पहले कंचे का मास भी m, दूसरे कंचे का मास भी m. अब आप देखेंगे कि टकराने के बाद पहले कंचे की वेलोसिटी कितनी होगी. आप इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करिए. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखिए पहले कंचे की वेलोसिटी को हम b1 फाइनल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फार्मूला है, इसमें m1 की जगह भी आप m पुट करेंगे और m2 की जगह भी आप m पुट करेंगे, नीचे m की जगह भी आप m पुट करेंगे और m2 की जगह भी आप m पुट करेंगे and then this is b1 initial. So this part will become 0, right? So as this part will become equal to 0, this means that b1 final जो है वो 0 हो जाएगा. तो कुछ अवस्था ऐसी है कि यदि देखिए इस तरीके से दो कंचे हैं, एक कंचा ऐसे है और एक कंचा ऐसे है और इसमें ये कंचा ऑलरेडी रेस्ट में है, ये कंचा रेस्ट में है. जब ये कंचा इसके बीच में टकराएगा तो टकराने के बाद क्या होगा, जो पहला कंचा होगा वो रेस्ट में चला जाएगा और दूसरा कंचा जो है वो पहले वाले की वेलोसिटी से मूव करेगा. तो दूसरे कंचे की वेलोसिटी हमें अब निकालनी है. इसके लिए हम इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करते हैं. देखिए इसमें क्या होने वाला है. b2 फाइनल, यदि दोनों कंचों के जो मासेस हैं वो बराबर हैं तो क्या होगा, यहाँ पुट कर दीजिए m1 की जगह m और जो नीचे है पहले वाले की जगह भी m, दूसरे वाले की जगह भी m, तो ये हो जाएगा m प्लस m 2m और ये आ जाएगा b1i, ये कैंसिल हो जाएगा. तो जो दूसरा कंचा है वो पहले कंचे की वेलोसिटी से मूव करेगा. ये है इसका मतलब. देखो यदि दो कंचे हैं, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है, ये दोनों टकराते हैं. टकराने के बाद क्या होगा, ये मैथमेटिक्स ये बताता है कि जो पहला कंचा है वो रुक जाएगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और जो दूसरा कंचा है वो पहले कंचे की वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा. ये देखिए कितने मज़ेदार मैथमेटिक्स है जो हमने यहाँ से किया है. और इसी तरीके से आपके पास एक सेकंड केस है. इसके लिए हमें अगले पेज पर जाने की ज़रूरत तो है, पर हम थोड़ा इसको तंग लिख के यहीं ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मुझे इक्वेशंस पर ले जानी पड़ेंगी. तो से केस नंबर 2 है हमारे पास. जो सेकंड केस होगा उसमें क्या है, यदि एक कंचा बहुत भारी है, मतलब एक कंचा ऐसे कुछ कुंभकर्ण की तरह है, एक कंचा छोटा सा है और एक बच्चा इतना बड़ा कंचा लेके आया है आपके कंचे तोड़ने के लिए. सो ये मास हुआ छोटा सा मास और एक मास हुआ लार्ज मास, राइट. तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसका मैथमेटिक्स ऐसे लिखेंगे कि जो m2 है इज़ वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू m1. तो इसमें देखिए जो पहले कंचे की वेलोसिटी फिर क्या होगी, जब वे टकराएंगे एक दूसरे के साथ तो टकराने के बाद इसकी क्या हालत होगी. वैसे आप अपने आप मन में आप अंदाज़ा भी लगा लें और वो फिर आपका देखिए कि मैथमेटिक्स आपके अंदाजे के ऊपर पूरा उतरता है या नहीं. सो जो पहले कंचे की वेलोसिटी कितनी होगी टकराने के बाद वो आपको इस इक्वेशन से पता चलेगा. सो ये इक्वेशन बताती है कि यदि जो m1 है ये तो बहुत छोटा है और m2 जो बहुत बड़ा है, तो घटाने के बाद जब बहुत बड़े में से बहुत छोटा पार्ट आप घटाते हैं तो यहाँ लगभग माइनस ऑफ कैपिटल M ही आएगा, या m2 लिख देता हूँ, m2 आएगा. और जब एक छोटा सा मास बड़े मास में जोड़ेंगे तो क्या होगा, then this mass will remain unchanged. इससे ना जोड़ने का फायदा ना घटाने का फायदा. तो यह आ जाएगा
इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए आपने क्या देखा, आपने ये देखा यदि दूसरा कंचा बहुत बड़ा होता है और जो छोटा कंचा है वो बहुत छोटा होता है, तो आप क्या देख रहे हो, आपके पास जो वेलोसिटी यहाँ से आ रही है वो आ रही है -v1i। बोलिए इसका मतलब क्या होया, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कंचा किसी वेलोसिटी से इसके साथ टकराएगा, टकराने के बाद इसको क्या होगा वो थोड़ा बाद में देखते हैं। तो पहला कंचा जो है वो बिल्कुल उसी वेलोसिटी के साथ पीछे की ओर वापस हट जाएगा। जब आप कंचे खेलते हैं तब आपने ऐसा देख भी रखा है। अब हम ये देखते हैं कि तो दूसरे कंचे का क्या हाल होगा। यहाँ देखो भला, तो B2 फाइनल को क्या होगा, ये देखिए ये मास बहुत छोटा है, दिस मास इज वेरी स्मॉल, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2m1 वैसे रह जाएगा। और ये बहुत बड़ा मास है तो ये और ये हो जाएगा, दिस इज वेरी लार्ज नाउ, m1 प्लस m2 इज वेरी लार्ज, ये बहुत बड़ा हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू b1i। अब जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, जब m2 बड़ा हो जाएगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, दिस पार्ट इज वेरी लार्ज एंड दिस पार्ट इज वेरी स्मॉल। अब आप देखें कि यदि कोई एक संख्या लें जिसमें डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो और न्यूमरेटर बहुत छोटा हो, तो ये आंसर बहुत छोटा हो जाता है। इसका मतलब ये नियरली इक्वल टू 0 आ जाएगा, 0 तो नहीं होगा पर लगभग 0 के आसपास होगा। इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ, फिजिकल मीनिंग ये इसका हुआ कि यदि छोटू सा कंचू बहुत बड़े कंचे के साथ टकराता है तो उसकी वो पिछले अपनी साइड को रिवर्स होके पीछे आ जाता है और बड़ा कंचा जो वहाँ वैसे का वैसा ही रह जाता है, उसके मास को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड this is a very interesting aspect of this collision. I hope that you have enjoyed a lot with elastic collision, inelastic collision, perfectly inelastic collision, and the kind of collision those you are watching all around us। और किस तरीके से आप कंचे खेलते हैं तो कैसे कंचे एक दूसरे की वेलोसिटी को शेयर करते हैं या एक कंचा अपनी जगह स्टेशनरी रहता है, तो बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। और यदि आप इसको और गहराई से करना चाहते हैं तो आप इसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।